So 6 months are left for the exam. Approximately 6 months are left for the exam. And if you are aiming to appear in this exam for CLAT 25 after 6 months, then what should be your goal? I can see that there are quite a few students who are appearing for CLAT next year. But it is so heartening to see the enthusiasm of those students, because अभी उनको नहीं भी देना है तब भी वो है. That really shows the hunger that they want to do well. So please make notes of what you are supposed to do. That I mean, करना तो वही चीज है. Good that you have decided early for CLAT और अभी टाइम है, तो अभी से अगर हम करें तो अच्छा ही रहेगा. Okay, so what is our agenda for today? Our agenda is first try to understand that where are you standing right now, where do you need to go, and what you need to do. This is, of course, is the most important thing, wherein we will discuss that what are the things that you need to do over the period of time, and then we will take the question and answer, if any. So firstly, let us see where you are right now. Now you need to rate it yourself, my preparation meter. Okay, so I'm sure that all of you must be knowing that CLAT exam has 5 sections: English, Quant, Logic, Legal, and GK. So English section had 24 marks last year, that is. Quant had 12 marks, Logic had 24 marks, Legal had 32, and GK 28 marks. So this was the marking scheme of 120 questions. Now, will they stick to the same marking scheme? Nobody knows, because every year they change the pattern. We do not know that whether it will be 120 question exam or 100 question exam or 140 question exam. That they may tell after some days, when once they come out with the form and other things. But for the time being, assuming that they stick to the previous year pattern, this was the pattern of the paper. I mean, the section wise distribution, that is. So we need to understand, where do I stand in my preparation. Now, how do I measure where do I stand? That you will understand towards the, as we move on to the session. तो मैं सेशन में कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे इंग्लिश हो गया या लॉजिक हो गया या क्यूटी हो गया, हमें क्या क्या चीजें करनी है. आप देखो आपने उसमें से कितनी चीजें कर ली हैं. दैट विल डिफाइन योर प्रिपरेशन मीटर. Okay, so quite a few of you would have started your preparation very recently. That does not matter. Quite a few may not even have started preparation. अभी चालू भी नहीं किया होगा, सोच रहे होंगे कि अभी करना है. वो भी प्रॉब्लम नहीं है. कुछ लोग 6 महीने पहले से भी कर रहे हैं. आपको एक चीज समझना है, the preparation day is start day does not matter. What matters is what you make of the remaining time. अभी जो आने वाला समय है, उसका आप कितने अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हो, इंपॉर्टेंट वो है. ना कि ये कि कोई 6 महीने पहले से तैयारी कर रहा है या कोई 1 साल पहले से तैयारी कर रहा है. इस चीज को हम दिमाग में बैठाएं. हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी. ठीक है, तो अभी सेशन को ध्यान से सुनो. आपका ये जो फर्स्ट वाला स्लाइड है, माय प्रिपरेशन मीटर, फिर उसको मेजर करेंगे कि आप अभी कहां पर स्टैंड कर रहे हो. Now, how does my zone look like? So for all the career launcher student, the career launcher student get the online account. So उस online account में have you started taking the topic test? That is one of the parameter to see whether you are preparing in right direction. तो सारे topics के test है, जैसे reading comprehension का test है, legal में constitution का test है, तो all the topics have the test. So have you started taking the test? Have you started taking the full mocks? So those students who come to the classroom program, compulsorily they take mock every week. But those who are attending it online, they may miss it. But it may be available in your account, particularly CLAT 25 students के account में test available हैं. तो क्या हम वो टेस्ट देना चालू किए हैं? बिकॉज अगर हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं, कहां हमें जरूरत है और प्रिपेयर करने की. Then this is the thing which may be applicable to quite a few students who are having their board exams. Okay, so I am preparing for the board along with the CLAT, and I have to start getting serious about the board. Was only preparing for the CLAT. दो situation है ये. आप ये समझो, CLAT का एग्जाम December 1 को ओवर है. इसके बाद आपको बोर्ड्स के लिए पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, ये पूरे के पूरे 3 महीने मिल रहे हैं. बोर्ड्स चलेंगे आपके मार्च के मंथ में. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि बोर्ड्स में फोकस नहीं करना है. बोर्ड्स तो इंपॉर्टेंट है, नो डिनायल टू दैट फैक्ट. बट
I also need to understand one advantage of CLAT happening in the month of December is I can give my majority of the time to CLAT right now, and even then after that I will be having time to prepare for boards. तो बोर्ड्स की तैयारी भी करते रहूं साथ साथ, पर अभी क्लैट की तैयारी भी मेरे को अभी करना है. आई कैन नॉट लीव इट फॉर द एंड. वेयर आई नीड टू गो, ये एक देखना है हमें कहाँ जाना है उसके हिसाब से. ये देखिए क्लैट 24 में एनएलएस बैंगलोर जो टॉप कॉलेज है, ठीक है, रैंक 97 तक के जनरल कैटेगरी में हुआ था, 99.25 के स्कोर में. ठीक है, एंड कैटेगरी वाइज दिस टेबल इज गिवन टू यू. यू नीड टू लुक एट व्हाट कॉलेजेस यू आर एमिंग एंड व्हाट स्कोर यू शुड लुक एट. सो इफ यू सी टॉप 5 कॉलेजेस में अगर हम देख रहे हैं, तो टॉप 5 कॉलेजेस में जनरल कैटेगरी 94 मार्क्स वाज रिक्वायर्ड, एंड फॉर ईच कैटेगरी मार्क्स वहां पर दिए हुए हैं, नॉट अ ह्यूज डिफरेंस. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वन एग्जाम जहां पे आउट ऑफ 120 इफ यू वांट टू गेट इनटू टॉप 5 कॉलेजेस 94 मार्क्स आर रिक्वायर्ड. एंड इनफैक्ट एनएलयूज में अगर देखेंगे तो 90 मार्क्स. तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. क्लैट 24 का आपने सुना होगा पेपर इजी था, बट व्हाट डिड दैट मेंट? अगर पेपर इजी था तो कट ऑफ ऊपर चला गया, काफी ऊपर चला गया. मतलब 75% मार्क्स में आपका कोई नेशनल लॉ स्कूल में हो रहा है. दैट वाज द सिचुएशन. सो इफ पेपर इज इजी देन द कट ऑफ्स विल मूव अप, एंड आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट. आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओके, सो दैट इज दैट. आप देखो आप कौन सी कॉलेजेस एम कर रहे हो, ठीक है, और अभी आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो. Right, wherever you are standing, trust me on this, that in 6 months time you will be able to get to your dream college provided you put effort behind it. ठीक है, उसके पीछे एफर्ट डाला. अब एफर्ट कैसे डालना है अब हम उसमें आ जाते हैं. what I need to do, so we need to understand that CLAT exam is all about few things. ये necessary skills है CLAT exam की, इसको हम देखते हैं. First thing is reading skill. If you have seen the CLAT exam, it has 20 passages last year. सारे sections के मिला के 20 passages थे. 20 passages, 120 questions, सारे passage के form में, right? 4 options in each question. So you have to read the 20 passages, you have to read the 120 question, you have to read the 4 options, and then pick one right choice. Right? Pick one right choice. So the entire paper had around 11,000 words, जो आपको 2 घंटे में पढ़ के समझना है और सही आंसर को पिक करना है. ये इजी है. ये आपको सुनने में अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं आपको बताता हूं डिफिकल्ट क्या होता है. डिफिकल्ट होता है क्लैट 23 और क्लैट 22, जिसमें 20,000 वर्ड्स थे. बिकॉज दिस वॉज गेटिंग रियली, मतलब ये एक पर्टिकुलर जो बहुत इंग्लिश पढ़ते हैं बचपन से उनके तरफ बायस हो चला था, इस वजह से दे रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ पैसेजेस. राइट, सो राइट नाउ इट स्टैंड्स एट 11,000 12,000 वर्ड्स. So which again means our reading skill needs to be good. We have to read properly, we have to we have to understand things quickly. और पूरा पैसेज में जो स्किल जरूरी है वो ये होती है कि हम मेन आइडिया कितने जल्दी पकड़ पाते हैं, पैसेज लिखा क्यों गया है. तो दिस इज वन स्किल. सेकेंड स्किल इज रीजनिंग स्किल. So if you see the logical reasoning section and legal reasoning section, नाम में ही रीजनिंग है. तो आप लॉजिकली कितने क्लैरिटी के साथ सोच सकते हो कि पैसेज में जो बात बोली गई है वो क्या बोली गई है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, उसको वीक कैसे करना है. ऑल दोस थिंग्स आर रीजनिंग स्किल्स. व्हाई आर दिस थिंग्स रिक्वायर्ड? बिकॉज इन योर प्रोफेशन, लॉ के प्रोफेशन में आप जज बनो या लॉयर बनो, यू हैव टू रीड अ लॉट एंड यू हैव टू रीजन आउट अ लॉट. आपको आपके पास तर्क वितर्क जिसे बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, वो स्किल होनी चाहिए कि आप अपनी बात पे कैसे सपोर्टिंग एविडेंस दे रहे हो, सामने वाली की बात पे कैसे वीकनिंग एविडेंस दे रहे हो. ये सब चीजें आनी चाहिए. सो दिस एग्जाम टेस्ट यू ऑन दैट. राइट, सो ये स्किल्स इंपॉर्टेंट है. थर्ड स्किल इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. क्वेश्चंस हमारे सामने है, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं.
प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने, वो 4 ऑप्शन में से जो 3 गलत ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करना है। सी, इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन रीजनिंग, इट इज ऑलवेज अबाउट एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। मैथ्स में ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होंगे, मैथ्स में आप डायरेक्ट आंसर आएगा मार्क करोगे, बट इन चीजों में आपको एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर ए में ये प्रॉब्लम है, ऑप्शन नंबर बी में दूसरी प्रॉब्लम है। तो दोज स्किल्स आर रिक्वायर्ड विच ऑफ कोर्स वी टीच इन द क्लास। दैट इज द थर्ड थिंग, नेसेसरी स्किल इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल्सो इंक्लूड्स क्वांट। क्वांट्स के जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, बट क्वांट के 12 क्वेश्चंस होते हैं और बाकी 108 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो जीके के आपके 28 क्वेश्चंस हैं, और पूरे रीडिंग सेक्शन जो बोलूं, रीडिंग में इंग्लिश आ गया, लॉजिक आ गया, लीगल आ गया, इसमें आपके 80 क्वेश्चंस। जीके में भी पैसेजेस आते हैं, जीके में भी पैसेजेस आएंगे, आपको पैसेज दे समझ के, पैसेज को देख करके किस टॉपिक के बारे में समझना होगा और फिर उस पे क्वेश्चंस होंगे। तो जीके में पैसेज पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, बट दिस इज व्हाट द एंटायर स्टफ इज अबाउट। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्वांट भी हमें डालना पड़ेगा। दीज आर नेसेसरी स्किल्स टू क्रैक द एग्जाम। नाउ इफ समबडी सेज कि उसे क्लैट का एग्जाम क्लियर करना है बट उसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, तो मैं उसे आज ही बोलूंगा कि आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर मत करो, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। और ये आपको मैं साफ बोल रहा हूं, यू कैन नॉट, आई मीन दे फॉर एवरी एग्जाम देर आर फ्यू बेसिक नेसेसरी थिंग्स। क्लैट एग्जाम के लिए वो सबसे बेसिक नेसेसरी थिंग है, आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ के इवेंट्स के बारे में अपडेटेड रहना है। इसलिए नहीं कि जीके आता है, बट इसलिए भी क्योंकि इस पेपर में रीडिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। इफ यू कीप ऑन रीडिंग एडिटोरियल्स डेली, आप अगर एडिटोरियल पेज न्यूज़पेपर के डेली पढ़ रहे हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर के, आपकी 3 महीने में इंग्लिश का लेवल अपने आप सुधर जाएगा, आप रियलाइज भी नहीं करोगे, और जो जनरल अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी वो अलग। सो रीडिंग इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द एग्जाम। इफ यू डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, देन यू सॉल्व एज मेनी बुक्स एज यू वांट, प्रॉब्लम होगी एग्जाम क्लियर करने। इस चीज को ध्यान में रखें। तो क्लैट की स्ट्रेटजी में यहां पे देखो 5 सेक्शंस मैंने लिखे, इंग्लिश, जीके, लीगल, लॉजिकल, क्वांट। यहां पर मैंने लिखा है नेसेसरी चीज क्या है, कॉन्सेप्ट्स के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन के लिए क्या करना है, और टेस्टिंग एंड स्ट्रेटजी के लिए क्या करना है। तो क्लैट की स्ट्रेटजी में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला है कॉन्सेप्ट, दूसरा है एप्लीकेशन, और तीसरा है टेस्ट। ठीक है, तो इंग्लिश में, जीके में, लीगल और लॉजिकल में नेसेसरी जो डेली की चीज है वो न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। अब आप सोचो, आप एक न्यूज़पेपर 1 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से 4 सेक्शन की आप नेसेसरी चीज कर ले रहे हो, बिकॉज ऑल दी 4 सेक्शन हैव पैसेजेस। जीके में तो ऑफकोर्स जीके सुधारने के लिए तो न्यूज़पेपर ही करना पड़ेगा। तो आपका काम हो जा रहा है 1 घंटे, अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हो अलॉन्ग विथ एडिटोरियल पेज, द इंपॉर्टेंट न्यूज अगर आप पढ़ ले रहे हो, नोट्स बना ले रहे हो, आपका काम हो गया, आप नेसेसरी चीज कर लिए। क्वांट के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत से बच्चों का क्वांट वीक होता है। क्वांट वीक होने का सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि प्रैक्टिस नहीं करते। सी, आई कैन अंडरस्टैंड, अगर मैं भी एक स्टूडेंट होता और क्लास 6, 7, 8 में मुझे कोविड के समय ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती, मैं भी नहीं पढ़ता, मतलब वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड हैज मूव। सो वी कैन नॉट, वी नीड टू चेंज अवर हैबिट्स। तो वो गंदी आदत जो लग गई है कि हर चीज हमें बिना सॉल्व किए, बिना नोट्स बनाए करना है, उसे सुधारना तो पड़ेगा, बिकॉज कुछ लोग तो सुधार रहे हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो इन चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो हमें ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए क्या करना है, आपको बुक्स जो मिली है करियर लॉन्चर से और क्लास में जो शीट्स मिलती है, इसे घर जाके रिवाइज करना है। आपको ये देखना है आपके जो बुक्स मिली है, जो आपको 3 पैकेट्स मिले हैं, 3 पैकेट्स में लगभग 15-16 बुक्स जो हैं, वो आप कितने जल्दी खत्म कर सकते हो। अगर आपको दिसंबर के मंथ में एग्जाम देना है तो ऑनेस्टली बाय जुलाई एंड योर बुक शुड बी कंप्लीटेड, आपको बुक्स पूरी खत्म कर लेनी है, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम हो जाना चाहिए। क्लास शीट्स रिवीजन में बहुत काम आएगी, जो क्लास में शीट्स मिलती है। एप्लीकेशन, वट एवर यू हैव लर्न, आपको जो ऑनलाइन अकाउंट मैंने दिखाया, आपको पता ही है एस्पिरेशन अकाउंट हर स्टूडेंट का बनता है, जो ऑनलाइन अकाउंट, उसमें टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट जो हैं वो हमें देना है, तब हमारे कौन हमें समझ में आएगा हम कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन समझे हैं कि नहीं समझे। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्लैट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लैट की एक बुक है हमारे यहाँ, जो बुक आपको
आपको हेल्प करेगी। प्रीवियस ईयर में अब तक के जितने भी क्लैट एग्जाम है उसके सारे क्वेश्चंस वहां पर प्रेजेंट है। दिस विल हेल्प इन एप्लीकेशन, व्हाट एवर कॉन्सेप्ट यू लर्न अप्लाई हियर। टेस्टिंग एंड स्ट्रेटेजी, सो यू नो एवरी वीक मॉक हो रहा है, मॉक के बाद उसकी एनालिसिस आपको करना है। एनालिसिस में वीडियो सॉल्यूशंस आर अवेलेबल टू यू, टेस्ट सॉल्यूशंस आर अवेलेबल टू यू, एंड ऑफ कोर्स क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हर वीक एक एनालिसिस की क्लास जो हो रही है वो अलग। सो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर दी थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू डू फॉर ईच ऑफ दी सेक्शन। ओके, मस्ट डू क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें रोज करनी है। रीडिंग एटलीस्ट 1 hour डेली, दिस इज रीडिंग नॉट स्टडिंग। सो दिस इज रीड न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर एग्जाम्पल, एटलीस्ट 1 घंटे रोज पढ़ना है। हमें नोट्स बनाने हैं रोज, और मुझे पता है ये स्टूडेंट ये काम नहीं करते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ के कोई इंपॉर्टेंट वो सॉरी कोई वर्ड पढ़े आप जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता था, यू शुड राइट इट डाउन। प्लीज, मैं सिर्फ लिखने बोल रहा हूं, मैं रटने नहीं बोल रहा हूं। आप इसको रिवाइज करेंगे 3 से 4 बार नोट्स बनाने के बाद, तो ये वर्ड अपने आप आपको याद हो जाएगा। आपको नोट्स बनाना है अपनी मिस्टेक्स की। क्लास में आज ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था, सर ने बताया तब समझ में आया, वो गलती क्या थी, घर जाकर के उसे लिखना है। आपने कोई टेस्ट दिया था, उसमें आपका आंसर गलत आया था, क्यों गलत आया था, उसकी एनालिसिस करते समय जो गलती हुई थी वो आपको लिखना है। ये काम नहीं करते हैं, बट ट्रस्ट मी, टॉपर्स, किसी भी एग्जाम के टॉपर्स, मैं सिर्फ क्लैट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम श्योर यूपीएससी टॉपर हो, जेई टॉपर हो, कैट टॉपर हो, वो अपनी गलतियों को ध्यान में रखते हैं। ध्यान में रखने का सबसे आसान तरीका है लिख के रखना, टेस्ट के पहले रिवाइज करना कि इस तरीके की गलतियां मैं करता हूं। ट्रस्ट मी, 3 से 4 टेस्ट के बाद आपकी एक्यूरेसी सुधर जाएगी। जीके के इंपॉर्टेंट इवेंट्स का नोट्स बनाना, नोट्स हमें इन 3 चीज के बनाने हैं। अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करना है और उस पर काम चालू करना है। विदाउट सेइंग, मुझे जो लगता है ज्यादातर बच्चों का मैथ्स वीक है। अगर मेरा मैथ्स वीक है, ठीक है, अगर क्लैट को 1 महीने का टाइम होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। 1 महीने में अब क्या सुधारूं, बाकी चीजों पे ध्यान देता हूं। बट अभी 6 महीने का टाइम है, अगर मैं अभी नहीं सुधारा तो मैं इसे कभी नहीं सुधारू। और अगर मैं इसको नहीं सुधारता हूं तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये सिर्फ 12 मार्क्स का है। आपको मैं एक वापस से वो चार्ट दिखाता हूं जहां पर हमने बात की थी कॉलेजेस की। अभी देखते हैं ये 12 मार्क्स का डिफरेंस क्या करता है। ये रहा आपको एचएनएलयू रायपुर, जनरल कैटेगरी के लिए 92.25 मार्क्स। डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ जनरल कैटेगरी, ये ऑल इंडिया लिस्ट है ना, ये ऑल इंडिया में 92 मार्क्स आया था, उसका जनरल कैटेगरी में एचएनएलयू हुआ था। छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल के लिए ये 80 मार्क्स, छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल के लिए 80 मार्क्स। ठीक है, जनरली मैंने देखा कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे थे छत्तीसगढ़ में, और अक्रॉस इंडिया की अगर मैं बात करूं, सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही नहीं, अक्रॉस इंडिया की, मैथ्स में 0 मार्क्स। और जो टॉपर है ना, एनएलएस बैंगलोर जा रहा है जो, उसके मैथ्स में आ रहे हैं 10 मार्क्स। सीधा सीधा 10 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो इस सेक्शन के वजह से आ रहा है। एक चीज आप समझो, रीडिंग सेक्शन के हैं टोटल 80 मार्क्स। आप बहुत ज्यादा रीड करें, बहुत इंग्लिश पढ़े, बहुत सब कुछ किए, आपके इसमें 65 मार्क्स आ सकते हैं। कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है उसके इसमें 70 मार्क्स आ सकते हैं, बट इससे ऊपर लाना मुश्किल होगा। इससे ऊपर लाना मुश्किल होगा बहुत मेहनत करने के बाद भी। हम क्या करते हैं, हम पूरी मेहनत यहां पर लगाते रहते हैं और फिर हमें लगता है और मेहनत करेंगे तो और नंबर बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, एक लिमिट के से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और पूरा का पूरा क्वांट हम छोड़ते चले जाते हैं। यहाँ पे 0 मार्क्स है। यार अगर तुम्हारे यहाँ पे 60-65 आ रहे हैं तो यू नीड टू फोकस ऑन कि अगले 10 नंबर कहां से आने, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉन इफ यू आर वीक एट इट। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई नो बहुत से स्टूडेंट का ये वीक है और इससे ये छोड़ते चले जाते हैं। आप ये चीज समझें कि इसमें जो मैथ्स आता है वो सिर्फ ये 3 टॉपिक ही हैं, परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस। अगर आप ये 3 टॉपिक अच्छा कर लेते हैं तो क्लैट के क्वांट में एटलीस्ट 12 नंबर का जो है उसमें 5 से 6 नंबर आपके आ जाएंगे। We have done these topics in class 8 and 9. We just need to go back and work on our fundamentals, and we need to understand that maths को hate करने से कुछ भी नहीं होगा, हमें इसे सुधारना पड़ेगा। अभी 6 महीने का टाइम है।
रिविजन इज इंपॉर्टेंट एंड 500 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब होता है सेल्फ स्टडी। क्लैट क्रैक करना है तो ये 500 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तब आप सोच सकते हो कि कोई नेशनल लॉ स्कूल में होगा, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा। ये भी डिपेंड करता है कि अभी तक आप क्या किए हो। किसी का अगर मैथ्स बहुत अच्छा है तो ऑब्वियसली वो एडवांटेज में है। कोई बचपन से किताबें पढ़ते आ रहा है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो एडवांटेज में है। तो उसके लिए 500 आवर्स विल बिकम देन 450 आवर्स और 400 आवर्स। ओके, राइट। अब ये 500 आवर्स ऑफ क्लैट प्रिपरेशन को डिवाइड कैसे करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर अगले 6 महीने की बात करें, तो 100 आवर्स शुड गो टू रीडिंग। मैं 1 घंटे की रीडिंग रोज बोल रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आपको रीडिंग तो करना ही है। 100 घंटे, 100 आवर्स की रीडिंग में आपका रीडिंग पार्ट और जीके ये दोनों कवर हो रहा है। 120 आवर्स ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में क्या था? बुक्स एंड शीट्स। 120 आवर्स शुड गो टू दैट। 120 आवर्स शुड गो टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में होता है टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड डेली डोज। डेली डोज में आपको रोज 2 टेस्ट आएंगे, अगर उस दिन आप नहीं दे रहे हो तो वो टेस्ट चले जाएंगे। ये हुआ एप्लीकेशन। 80 आवर्स ऑफ मॉक टेस्ट, मतलब लगभग 40 टेस्ट मुझे क्लैट के पहले देने हैं, क्लैट बेस्ड। एंड दोज 40 टेस्ट की फिर एनालिसिस भी उतनी ही देर की हो। एनालिसिस में मुझे ये देखना है कि मेरे से क्या क्वेश्चन सही हुए हैं। सही हुए हैं तो वो तुक्के में तो सही नहीं हुए। गलत क्या क्या हुए? गलत हुए तो सिली मिस्टेक थी कि जेन्युइन मिस्टेक थी, कि लैक ऑफ नॉलेज था। कौन कौन से क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए बिकॉज टाइम मैनेज नहीं हुआ। तो ऑल दोज थिंग्स विल यू विल लर्न ओनली वंस यू स्टार्ट टेकिंग द मॉक टेस्ट। अदरवाइज वो समझ नहीं आएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर अभी से लेकर के हम कैलेंडर देखें, ठीक है, तो क्लैट का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, एलेट का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। ये है समर वेकेशन। अभी आपका मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स का 15 जून तक के समर वेकेशन चल रहा है। वी आर सिटिंग ऑन 20, आज मान लेता हूं चलो 20th में, मंडे से। अब ये मंडे से लेकर के अगले जो 25 डेज मेरे लिए है, वैसे ही हम टाइम गवा चुके हैं कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने समर वेकेशन में का यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं किया तो मैं पीछे होते जा रहा हूं। प्लीज, घूमना, घूमने भी अगर जाना है तो मेक श्योर कि न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहे हैं। प्लीज एंश्योर, जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं खास करके, प्लीज एंश्योर कि यू यूटिलाइज योर समर वेकेशंस वेल। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपके स्कूल्स चालू हो जाएंगे तो दिन में 5 से 6 घंटा स्कूल और ट्यूशंस के, उससे ज्यादा आपके पास कितना टाइम बचेगा? वी हैव टू गिव 500 आवर्स टू आवर प्रिपरेशन। इन 500 आवर्स में से अगर मैं 150 आवर्स मई और जून में निकाल लेता हूं, 150 आवर्स मई और जून में, मतलब जो बचे हुए 25 30 डेज भी अगर लूं, 30 डेज में 150 आवर यानी डेली 5 आवर्स पढ़ना पड़ेगा अभी। तो आपकी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे स्टार्ट होगी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यूज योर मंथ ऑफ मे एंड जून वेल, यूज देम वाइजली, बिकॉज जुलाई एंड के ऑनवर्ड्स, बोलता हूं अगस्त ऑनवर्ड्स, आपके बोर्ड्स का प्रेशर भी चालू हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में बहुत सी जगह प्री बोर्ड्स होते हैं, तो बोर्ड्स में भी ध्यान देना पड़ेगा, अनअवॉइडेबल है। ट्यूशंस जाने पड़ेंगे। बट तब के समय भी मुझे रोज 2 आवर्स टू क्लैट तो देना ही होगा। अगर मैं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 2 घंटे क्लैट को देता हूँ, दिसंबर मंथ और ज्यादा देता हूँ, थोड़े दिन बोर्ड से प्री बोर्ड्स के बाद, दिसंबर में तो क्लैट ही हो जाएगा, नवंबर में करना पड़ेगा वो चीज, तो भी आपके 500 आवर्स शायद ना हो पाए। तो प्लीज अंडरस्टैंड, टाइम इज वेरी प्रेशियस। आपको हर दिन अभी से टाइम निकालना पड़ेगा। ये ना सोचे कि मैंने तो तैयारी अभी चालू की है। अब जब भी की है, टाइम अभी ही है। आपकी स्टार्टिंग डेट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये मैं पहले बोला। बट एंड डेट तो सबकी सेम है, दिसंबर 1। सबके लिए यही डेट है। आप अक्टूबर में प्रिपरेशन चालू करो या मई में करो, आपकी एग्जाम तो तभी है। आपको उसके हिसाब से पढ़ना है। 500 आवर्स निकालने हैं, यहां पर हमें टाइम देना पड़ेगा, अनअवॉइडेबल है। और दूसरी चीज, यहां पर अगर मैं बात करूं
तो मई से जुलाई एंड तक के कॉन्सेप्ट वाला काम मेरा होना चाहिए। न्यूज़पेपर तो रोज पढ़ना ही है, कॉन्सेप्ट मतलब बुक्स बनाने का, ठीक है। जुलाई ऑनवर्ड्स फिर मैं फोकस करना चालू करूं एप्लीकेशन में, सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक टेस्ट ढेर सारे दूं, जहां जहां पर गलतियां हो रही है उनके कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज करूं। और टेस्टिंग एंड स्ट्रैटेजी ये अभी से लेके क्लैट तक के चलेगी, यानी कि क्लैट के फुल लेंथ मॉक्स अभी से देना चालू करना है, क्योंकि तभी मुझे एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा। देन ओनली आई विल अंडरस्टैंड विथ व्हाट सेक्शंस आर एम आई नेचुरली गुड एट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आप किस सेक्शन में नेचुरली अच्छे हो और किस सेक्शन में आप वीक हो। जितने जल्दी ये पता चलेगा उतने जल्दी आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन देर आर सेवरल एग्जाम जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद में होते हैं, तो वो चलेगा, बट क्लैट एंड एलिट तो पहले है। आपको यहाँ पर फोकस करना है, तो दिस इज द टाइम शेड्यूल दैट यू नीड टू फोकस ऑन, राइट। सो मैंने अपनी तरफ से जो बातें बतानी थी बता दी। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व देम।